Hello, good evening. Good evening, sir. Okay. So we are continuing our discussion yesterday. We were looking into some of the reducing agents that we encounter in organic chemistry. Okay. Hmm. So yesterday we had looked into some of the reducing agents that we come across in the organic chemistry. We had discussed about particularly LiAlH4 and NaBH4. Then we looked into Debal H, Stephenson reduction, Rosenman reduction, and all that. Okay, so we'll just summarize what we discussed yesterday. NaBH4 and LiAlH4. Both of these are powerful reducing agents. These are basically hydride donors. Okay. So as hydride donors, they release H minus ion, and wherever is there any electrophilic site, that is going to be attacked by these two hydride ions. Okay. In case of NaBH4 and LiAlH4. Now, NaBH4 is a weak reducing agent, so it can reduce alcohols, it can reduce ketones, it can reduce acid chlorides because these are some of the reactive carbonyl groups. Okay? But it is not going to affect RCOOH, carboxylic acid, or ester or amide for that matter. Okay? So they are not going to get reduced by SPH. On the other hand, LiAlH4 is a very powerful reducing agent. It can reduce aldehydes, it can reduce ketones, it can reduce carboxylic acid, it can reduce esters, and like this. So mechanism also we looked into yesterday. Then the second reducing agent that we came across yesterday was Debal H, diisopropyl aluminum hydride. So it has only one acidic hydrogen. That is why it is going to reduce only to the first step. The further reduction of alcohol in aldehyde in, or ketone for that matter into alcohol will not take place because no more hydrides are present. Okay? And we looked into the contrast. We contrasted it with LiAlH4. So LiAlH4 had many hydrides per molecule. So that is why in that the reaction took place in series of steps, and ultimately we ended up having a alcohol. Okay? That is not possible in the case of Debal-H. Then we looked into Rosenman reduction. Rosenman reduction is it converts acyl chloride into aldehydes. So the reagent here is Lindlar's catalyst or poisoned palladium. So if we don't poison the palladium, if we just use pure palladium and hydrogen, then it is going to reduce it completely to alcohols. Okay. But if we poison it using BaSO4, then what happens? The reaction stops at RCOH. Okay. And then we recalled how in hydrocarbons also we used to see some similar reaction. In case of poisoned palladium, the partial hydrogenation used to take place and we used to have alkene. Whereas without this poisoned palladium, we used to have alkenes. Okay. Then further reactions of Debal H we looked into how it reacts with cyanide, how it reacts with carboxylic acid, acyl chloride esters and all. Then we looked into the mechanism of hydrolysis of imine. So hydrolysis of imine takes place with the removal of NH3 and ultimately formation of a aldehyde. Then we looked into Stephenson's reduction. So how Sn plus 2 gets oxidized to Sn plus 4, releasing 2 electrons, and these 2 electrons are taken up by the electrophilic carbon that is over here, and by resonance we form this compound. Again from HCl, the two moles of H plus are going to eventually get added to carbon and nitrogen. Then again we get this imine. Imine can again undergo hydrolysis just like we saw in the previous case. Okay, all of this example are clear to everyone. Hello, Yes, sir. just wait a minute. So today we are going to see some of the more reducing agents that you are going to come across. Okay. So don't think that we are discussing just alcohol. Some of these reactions you are seeing that the product is an aldehyde. So what it has to do with alcohols. So all the reducing agents that you are going to encounter in the entire organic chemistry that we are going to discuss today. Okay. So we are not discussing it section wise, chapter wise, or let us say functional group wise. We are discussing it more in the types of reaction manner. Okay. So in the previous chapter, our main focus was understanding the substitution and eliminations reactions. Okay.
in this chapter the main focus will be on oxidation and reduction reactions. Okay? Similarly, when we study aldehydes, our main focus will be nucleophilic attack, nucleophilic addition, and aldol reactions will be the main focus. And carboxylic acid and ester, there will be different categories that will be our point of interest in the subsequent chapters. Okay, so can you think of some more reducing agents that you might have come across in organic chemistry till now? Okay. So yesterday we looked into Rosenmund reduction, poisoned palladium. Uh, Now we are going to look further into that. This is this is number four we discussed. So this is number 5. So this is H2PD. This H2PD you must have come across in your class 11th, okay? Hydrocarbon chapter. So how this reaction takes place? Let us say this is the double bond, and there is a bed of palladium over here, in which hydrogen atom is adsorbed. Okay? Hydrogen atoms are adsorbed here on this surface, and then this reaction takes place in the syn fashion. One molecule of hydrogen here, one molecule of hydrogen get added up here. So this addition takes place in a, this is syn addition. Okay? Both the hydrogen atoms are added from the same side. So this is quite popular. You must have seen this. Then okay, so okay, so there are a few questions in this. You have to compare the rate of hydrogenation. Okay. We are just recapping it, what you discussed, what you might have studied in your class 11. So there are a few compounds. You have to compare their rate of hydrogenation. Hmm. Okay. Try these 4 questions. Okay, you are done. Hello. Okay. Okay, so in the first case, what will be the answer? Who will tell? अच्छा, ओइशी आप बताइए.
In 1 to 3, what will be the rate of hydrogenation? So 1 will be better than 2 will be better than 3. Very good. ठीक है. In second, भव्य आप बताइए. Sir, 2 is greater than 1. 2 is greater than. ठीक है. Then third, Amisha आप बताइए. So first is greater than 1. Okay, very good. Then fourth one, Oishi. Sir, I did not do. क्या? Sir, I did not do it alone. अच्छा. भव्य आप बताइए. Sir, second one. Second one will be greater. ठीक है. So less alkylated, less alkylated alkene or alkyne is going to have faster hydrogenation. ठीक है. Now there is another reaction that is similar to this. This is sixth one. This is known as sodium in NH3 liquid. Okay. This is called as Birch reduction. So what basically happens in this? Same reagent. Let us say we have this compound. You add NaNH3 to this, so it undergoes hydrogenation in the anti-fashion. Okay. So okay. So the two hydrogens that are going to get added, they get added in an anti-fashion. Okay. So this is anti-addition. Okay. So mechanism is very much similar. Okay. Then okay, these reagents number 5 and number 6, that is especially number 5, which we discussed just now, this can perform other things also, like for example it can convert aldehydes into alcohols. Okay. Then it can even convert carboxylic acids to alcohols. Okay. So let us say this is R, this is R dash, so you'll get RCH2 OH plus R dash OH. Okay. H2PD can do that also. Okay. But if you use poisoned palladium, let us say in this case, same question. In case of H2PD, if you are using, let us say, poisoned palladium, H2PD, in the presence of BaSO4. So sometimes you will find BaSO4 as a poison, or sometimes CaCO3 is also used. Okay. So what is going to take place in this case? So as we discussed earlier, the poisoned palladium के case में Rosenman reduction होता है, and that takes place only till the aldehyde. Aldehyde का फिर further reduction नहीं होता है alcohols में. ठीक है. तो first step will be R dash OH तो पहले ही निकल जाएगा, and then this RCOH will remain. ठीक है. This will not further oxidize. Reduce. ठीक है. Similarly, your RNO2. You use it with H2PD and get converted to RNH2. Amines बन जाता है इसका. Then similarly, if you have RC double bond O NH2, you add H2PD, that is going to get reduced to RCH2.
So these are some of the reactions. Now here is a question. So how many alkenes are possible for this? Okay. So how many different form of alkenes are going to give this product on hydrogenation? Okay. So you have 2 minutes. Just solve this. Okay, are you done? Okay, who is going to tell the answer? Bhavya, answer बताइए. Sir, 5. 5. Okay. Any other answer apart from 5? Okay. Let us see what all possibilities are there. तो आप इसमें डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ लगा सकते हैं? ठीक है. यहाँ पे लगा सकते हैं. Then, यहाँ पे लगा सकते हैं. Then, यहाँ पे लगा सकते हैं. ठीक है. Then यहाँ पे लगा सकते हैं. तो 4 हो गए. और किधर? 3 4. सिस ट्रांस जैसा भी कुछ हो रहा है क्या? या फिर कायरल कार्बन? ये कार्बन कायरल, इसके 2 फॉर्म हो जाएंगे. ये कार्बन भी कायरल है, इसके भी 2 फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है. तो वो 2 4 1 5 1 6. आंसर विल बी 6. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबका 6 आया था? विशी, आपका आंसर क्या आया था? ओके, चलो ठीक है, कोई बात. तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करने का, कायरलिटी वगैरह देख के, तो उसमें गलती नहीं होगी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग. दिस वाज सर, क्वेश्चन. लास्ट वाला आपने जो कंपाउंड बनाया उसके साइड वाले में भी तो डबल बॉन्ड हो सकता है. उसके साइड वाले में नहीं, वो रिपीट हो जाएगा. फिर ये और वो, ये वाला और वो वाला आइडेंटिकल हो जाएंगे. दिख रहा है? यस सर. हाँ. चलो ठीक है. तो दिस वाज 5th reagent. 5th नहीं, 6th हो गया. 6th हो गया. Then we are moving on to 7th reagent. This is your red phosphorus plus HI.
This is the most powerful reducing agent. Most powerful reducing agent. Sorry. In entire organic chemistry. पूरे entire organic chemistry में आपको इससे ज़्यादा powerful strong reducing agent नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है. ये इतना अच्छा reducing agent है कि अल्कोहल पे भी नहीं रुकता है. अल्कोहल को भी further reduce कर देता है किस पे? अल्केन्स पे. ठीक है. तो we are going to look into mechanism कैसे ये होता है. तो attacking agent is basically HI. तो इस रिएक्शन के दो मैकेनिज्म्स पॉसिबल हैं. एक होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, एक होता है एनायनिक मैकेनिज्म. तो हम लोग पहले फ्री रेडिकल देखते हैं. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म HI है. दिस ब्रेक्स इनटू H रेडिकल प्लस I रेडिकल. ठीक है. और RI ये हमारा रिएजेंट होता है. इस पे आपने क्या डाला? HI डाला. ठीक है. देन व्हाट रिएक्शन टेक्स प्लेस है? पहले इसका यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होता है. R रेडिकल प्लस I रेडिकल. ठीक है. और HI का ऑलरेडी हम लोगों ने H रेडिकल I रेडिकल करा चुका है. H रेडिकल इससे बॉन्ड बना लेता है, I रेडिकल इससे बॉन्ड. We'll get RH plus I2. ठीक है. So this is the mechanism. इसका एक और मैकेनिज्म है, that is your ionic mechanism. ठीक है. एक मिनट. तो HI है, H प्लस प्लस I माइनस के फॉर्म में आता है. ठीक है. RCl से आपने इसको अटैक करा है, I माइनस इस पे अटैक करेगा, फॉर्म RI प्लस Cl माइनस. फिर RI का जैसे हमने ऊपर कराया HI के साथ, that will be RH plus I2. ठीक है. तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जनरली लोग फॉलो करते हैं. कुछ रिसर्च से आयोनिक भी प्रूव होता है. तो फ्री रेडिकल हम लोग जनरली इसको मान के चलेंगे. ठीक है. सर यहाँ पे कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि हाइड्रोजन और आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है. क्या कार्बो क्या बोल रहे हैं? ये फ्री रेडिकल क्यों बन रहा है? सॉरी. फ्री रेडिकल इसका मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल. सर क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो ज़्यादा है ना हाइड्रोजन और आयोडीन का, तो कैटायन और एनायन बनना चाहिए. कैटायन. हाँ. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं है जितना दूसरे अल्काइल. हाइड्रोजन का 2.2 और इसका 2.6 है. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्यों हो रहा है पता नहीं. मैंने देखा है कि HI के बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, इसमें फ्री रेडिकल ही होता है. ठीक है. व्हाई एग्जैक्टली दिस इज टेकिंग प्लेस ये मेरे को पता नहीं है. हाँ ठीक है. तो बॉन्ड एनर्जी अगर आप कंपेयर करो, ठीक है, HCl HF HBr HI. ठीक है. तो ये सारे बॉन्ड जो है वो आयोनिक तरीके से भी टूट सकते हैं और क्या बोल रहे हैं आपके फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से भी टूट सकते हैं. ठीक है. तो जैसे हम इस तरफ बढ़ेंगे तो फ्री रेडिकल की टेंडेंसी बढ़ जाती है. ठीक है. H रेडिकल और I रेडिकल, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ दोनों में क्या होता है? वीक हो जाता है. ठीक है. और जनरली जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है वो या तो उसको कुछ एनर्जी सोर्स चाहिए होता है. ठीक है. या तो आपको H म्यू होगा. ठीक है. या फिर कभी कभी हीट लिखा होगा, मतलब कुछ एनर्जी सोर्स बाहर से लगता है. या फिर कभी कभी हाई टेम्परेचर लिखा होगा. ठीक है. तो वहां पे थोड़ा सा हिंट मिलेगा कि यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो सकता है. ठीक है. H म्यू हो या फिर हीट हो या फिर हाई टेम्परेचर हो. और HI का बॉन्ड स्ट्रेंथ इतना वीक होता है कि रूम टेम्परेचर इसके लिए हाई हो जाता है. ठीक है. So for HI even room temperature is high. ठीक है. तो ऐसे फ्री रेडिकल्स हो जाता है. अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू मेमोराइज कि मतलब कौन से रिएक्शन आयोनिक से होता है, कौन से फ्री रेडिकल से होता है. ठीक है. जैसे वुड्स रिएक्शन भी, इफ यू रिमेम्बर, तो वुड्स रिएक्शन में कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड होता है, ठीक है, सॉरी,
Woods reaction. So this also takes place by free radical mechanism. ठीक है. Similarly, Corey-House reaction. ठीक है. इसे आपने 11th में पढ़ा होगा. Corey-House reaction also takes place by free radical mechanism. So it is not always कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम होगी तभी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा. ठीक है. इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के बाद भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो सकता है. ठीक है. ओके, आगे बढ़े. हेलो. Sir, हाँ बोलिए. sir, we generally use the free radical mechanism. We generally use the free radical mechanism. ठीक है. Okay, sir. हालांकि इसका मैकेनिज्म भी इम्पोर्टेंट नहीं है. रेड फॉस्फोरस प्लस एचआई का आपसे कोई मैकेनिज्म नहीं पूछेगा, बट स्टिल फॉर योर नॉलेज जस्ट आगे बढ़े. ठीक है. तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स यहाँ पे आपके एचआई के साथ रिएक्ट करेंगे एंड ऑल ऑफ देम विल यील्ड द सेम प्रोडक्ट. ठीक है. जैसे आरओएच में अगर आपने डाला क्या, रेड फॉस्फोरस प्लस एचआई, तो ये क्या काम करता है. सबसे पहले तो ये आर आई बना देगा. ठीक है. बिकॉज एच प्लस आई माइनस, एच प्लस इस पे अटैक करेगा, डिप्रोटोनेशन होगा. यू विल गेट R plus H2O. H2O निकल जाएगा. Then this R plus is going to attach itself to I minus. We get RI. फिर RI का हमने जैसे कराया पिछले केस में रेड फॉस्फोरस प्लस HI, उसके हिसाब से RH हो जाएगा. ठीक है. By free radical mechanism. Is it clear to everyone? Similarly, अल्कीन को भी ये रिड्यूस कर सकता है. RCH डबल बॉन्ड CH. इस पे आपने क्या डाला, रेड फॉस्फोरस प्लस HI. सबसे पहले क्या होगा, this HI is going to get attached and it is going to form this compound. ठीक है. Again this is RI just like this case. फिर इस पे आप further रेड फॉस्फोरस प्लस HI डाल के पिछले केस में जैसे कराया था R CH2 CH2. So this is how alkenes react with red phosphorus plus HI. Similarly ketones का हम देखते हैं C डबल बॉन्ड O R डैश. ठीक है. इस पे आपने क्या किया, अगेन 2 moles of HI, 2 moles of H radical plus 2 moles of I radical. H radical ये C, सॉरी यहाँ पे HL जैसा क्लोरीन जैसा लग रहा है. ठीक है. तो फिर यहाँ पे क्या होगा, H दोनों डबल बॉन्ड पे लगा दो, R C O H H R dash. ठीक है. So now it becomes just like your first case. Just like your first case, you can proceed. ठीक है. RCl बना के फिर further RH लगा देने का. ठीक है. This is the second case. This is the third case. फिर fourth R C डबल बॉन्ड O OH. इसमें आपने HI डाला. तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा जैसे इस केस में होगा. H radical 2 moles of HI, 2 moles of H radical, R C OH OH H. ठीक है. नाउ एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होता है. ठीक है. Such kind of compounds on a sp3 hybridized carbon 2 OH are very much unstable. तो ये तुरंत क्या करते हैं, H2O निकाल के पाई बॉन्ड बना लेते हैं. ठीक है. R C डबल बॉन्ड H. तो अल्कोहल बन गया इधर. ठीक है. And this will proceed just like your case 3.
केस 3 में जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा। समझ में आ रहा है सबको? ओके So why 2OH are unstable? हाँ, अभी आएंगे उस पर। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं ओवर क्राउडिंग। ठीक है, ओवर क्राउडिंग के कारण क्या होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे कुछ ग्रुप्स आपके अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, आई थिंक ये हम एक बार डिस्कस किए हुए हैं। एक कार्बन पे अगर OH हो और यहाँ पे X हो, आई थिंक हमने ये किया हुआ है। X क्या क्या हो सकता है? ठीक है, तो उस केस में कुछ कुछ चीजें निकल जाती है। क्या निकल जाती है? HX निकल जाता है। ठीक है, और फिर हमारा ये C डबल बॉन्ड पे रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसका दो रीजन है। फर्स्ट की बिकॉज ऑफ ओवर क्राउडिंग, एक कार्बन के ऊपर दो बल्क के ग्रुप्स हैं। सेकेंड रीजन इज कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड इज very much strong. ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन पाई बॉन्ड इज very very strong. ठीक है, फिर ये X क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? X can be your OH, X can be any halogen, X can be your NH2, X can be your NHR. ठीक है, X can be any alcohol, X can be your any ester group. ठीक है, is it clear भव्या? Yes, sir. Okay, तो now it is going to proceed just like your third case. ठीक है, इसको नोट कर लो सारे रिएक्शंस को, वो आगे बढ़ता है। आप लोगों ने क्लास 11th में क्लीमेंसन रिडक्शन पढ़ा था? सर याद नहीं है लेकिन। याद नहीं? चलो ठीक है, ये नोट कर लिया, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, अच्छा एक चीज नोटिस करो, यहाँ सारे स्टेप में बस HI रिएक्ट कर रहा है, तो हम लोग फास्फोरस क्यों डालते हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ फास्फोरस हियर? ठीक है, तो इसको देखते हैं। Why red phosphorus is used? तो रेड फास्फोरस क्या करता है आपके I2 से रिएक्ट करके, दिस अच्छा, रेड फास्फोरस इट रिएक्ट्स विथ योर I2 और इसको क्या बना देता है फिर Pi3। ठीक है, एंड दिस गेट्स हाइड्रोलाइज्ड, H3PO3 बन जाता है आपका, प्लस 3 मोल्स ऑफ HI। तो आपका रिएक्शन में जो I2 बन रहा है, again that is getting converted into HI। ठीक है, this is regained if you are using phosphorus। ठीक है, so this is why red phosphorus is used। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। then now we are going to look into different kinds of reductions of carbonyl groups। ठीक है, heading डाल लो, this is a reduction of carbonyl compound। ठीक है, so type 1, आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है, दिस C डबल बॉन्ड O, you can convert it into CH2। ठीक है, so this is the type 1 kind of reduction। तो यहाँ पे आप कौन कौन सा reagent यूज कर सकते हैं? एक तो हमने अभी जस्ट पढ़ा, one kind of reagent that can be used is red phosphorus plus HI। ठीक है, रेड फास्फोरस प्लस HI पिछले पेज में ही हम लोगों ने देखा मैकेनिज्म कि कैसे इस कार्बोनाइल ग्रुप को CH2 पे कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है,
Second category of reaction is Clemmensen reduction. Clemmensen's reduction. Clemmensen's reduction में क्या होता है? Amalgamated zinc लेते हैं आप. This is your C double bond. गिर जाएगा नीचे. इस पे आपने क्या डाला? आपने इस पे ZnHg डाला in HCl. So this gets formed into CH2. Let us say this is R, this is R dash. ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन होता है. ठीक है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं. ठीक है, ये मैकेनिज्म क्लेमेंसन का है. तो सबसे पहला स्टेप, जिंक जो होता है आपका, दिस इज अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल. तुरंत ये Zn+2 बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है. ठीक है, देन द सेकंड स्टेप इन्वॉल्व्स ये डबल बॉन्ड जो है आपका, दिस RC डबल बॉन्ड O R डैश. इसमें क्या होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके अटैक करते हैं. 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे अटैक करेंगे? इस कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बन पे क्या है, डेल्टा प्लस. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया. व्हाट यू आर गेटिंग? यू आर गेटिंग RC माइनस R डैश O माइनस, और ये O माइनस से ये Zn+2 हमारा बॉन्ड है. ठीक है, Zn+2 Cl. ठीक है, Zn+2 O माइनस के साथ इधर और इधर Cl माइनस के साथ बॉन्डिंग करेंगे. अगेन इस कार्बन के पास क्या होता है, एक HCl आता है. ठीक है, यहाँ पे हम लोग HCl भी यूज कर रहे हैं. सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl से यहाँ पे H प्लस आ जाता है इस कार्बन पे. ठीक है, एंड देन यू आर गेटिंग R CH R डैश O माइनस Zn+2 Cl माइनस. यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स अटैक हियर और ये बॉन्ड इधर से खुल जाता है. ठीक है, you get R CH minus R dash. अगेन HCl आएगा, HCl से H प्लस आता है इस पे, and ultimately you end up having this compound. Is it clear to everyone? Yes, sir. But there is one problem in this. अगर इस कंपाउंड में ये दोनों जो ग्रुप है आपके R और R डैश, इसमें अगर कुछ एसिड सेंसिटिव ग्रुप हुआ, ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड. जैसे, ठीक है, हम इससे रिलेटेड बात करते हैं. ये सबने नोट कर लिया क्या? इसको नोट कर लो जल्दी से. नोट कर लिया, आगे बढ़े. Yes, sir. तो जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, लेट्स से इस कंपाउंड को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, इस कंपाउंड में. ठीक है, तो अगर आपने इसमें रेड फास्फोरस एच डाला तो क्या हो जाएगा, वो डबल बॉन्ड भी आपका रिड्यूस हो जाएगा. सॉरी, रेड फास्फोरस एच के साथ क्या होगा, ये तो आपका COCOH में हो जाएगा कन्वर्ट, साथ ही ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा, जो कि आप नहीं चाहते. ठीक है, अगर इसमें आपने
क्लीमेंसन रिडक्शन कराने का कोशिश किया, ZnHg प्लस HCl कराने का कोशिश किया, ठीक है। तो ऊपर का ग्रुप तो ठीक है, वो रिड्यूस हो जाएगा आपका इसका इसमें, लेकिन साइमल्टेनियसली ये जो HCl है दैट इज गोइंग टू अटैक दिस डबल बॉन्ड एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू गेट दिस। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस कैन नॉट बी यूज्ड। यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने में ना तो हम रेड फास्फोरस प्लस से सही कर सकते हैं, ना ही क्लीमेंसन रिडक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। व्हाई? बिकॉज दिस कंपाउंड इज हैविंग अ एसिड सेंसिटिव ग्रुप। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है। तो this compound contains a portion that is sensitive towards acids. That is why Clemmensen reduction is not useful. ठीक है। तो इसी को करने का तीसरा तरीका है एक्चुअली। तीसरा तरीका क्या है? वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन। वुल्फ-किश्नर रिडक्शन आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 11th में? एटलीस्ट नाम सुना है? बताओ। हाँ सर। क्या होता है इसमें? रिएजेंट क्या होता है, कुछ याद है? बोलो। ठीक है। सो रिएजेंट होता है यहाँ पे KOH in NH2 NH2। So NH2 NH2 is your hydrazine। ठीक है। तो कैसे होता है रिएक्शन? सबसे पहले नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेंगे? इस कार्बन पे अटैक करेंगे, ये बॉन्ड इधर खुलेगा, RCO माइनस NH NH2 R डैश प्लस। ठीक है। फिर अब नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आया, वो क्या करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है। हाइड्रोजन से इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया, फिर ये H प्लस कहाँ जाएगा? O माइनस के पास। दिस H प्लस कम्स टुवर्ड दिस O माइनस। ठीक है। कंपाउंड आपका क्या बन गया? RCOH R डैश NH और इधर क्या? NH2। बात समझ में आ रही है? ठीक है। और साइमल्टेनियसली इसमें क्या होता है, एक और चीज होता है, इसमें हीटिंग होती है। ठीक है। तो हीटिंग होना मतलब डिहाइड्रेशन। तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा और दोनों के बीच पाई बॉन्ड बन जाएगा। We'll get RC double bond N NH2 R dash। ठीक है। So this particular substance is called as hydrazone। ठीक है। हाइड्राजाइन से बनता है, हाइड्राजाइन से अगर आपने H2O निकलवा लिया, हाइड्राजोन बन जाता है। ठीक है। तो इस हाइड्राजोन का क्या होगा? हाइड्राजोन का क्या होगा? इसमें OH माइनस अटैक करेगा। ठीक है। OH माइनस कहाँ पे अटैक करेगा? जहाँ पे भी इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन हो। एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे दिख रहा है इसमें? NH2 के पास। ठीक है। तो OH माइनस ने यहाँ से एक H प्लस निकाल लिया, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया, बचा गया इधर R डैश, क्या हो रहा है? RC R डैश डबल बॉन्ड N NH माइनस। नाउ दिस विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। किस तरह से? ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, C पे माइनस आएगा, इस पे प्लस, माइनस प्लस नहीं तो बॉन्ड आएगा, RC R डैश सॉरी सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH, C पे माइनस चार्ज है। दिख रहा है सबको? ठीक है। अगेन सॉरी सारा रिएक्शन किसमें हो रहा है? वाटर में हो रहा है। एंड कार्बन आयन इज अ वेरी गुड बेस, H प्लस खींच लेगा तुरंत वाटर से, RCH R डैश N डबल बॉन्ड NH। अगेन यहाँ पे आप बेस डालेंगे,
OH माइनस, OH माइनस क्या करेगा, ये एसिडिक H प्लस खींचेगा यहाँ से, अगेन ये H प्लस अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, R C H R डैश N डबल बॉन्ड N माइनस, ठीक है। तो N पे माइनस चार्ज आ चुका है, तो क्या करेगा ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकलेगा ताकि N प्लस हो और ये N2 निकल जाए, ठीक है। N2 निकल जाएगा, बचेगा यहाँ पे R C H R डैश माइनस, ठीक है। अब कार्बन आयन अगेन इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वाटर से अगेन ये क्या करेगा H प्लस खींच लेगा, ठीक है, R CH2। इज इट क्लियर? वुल्फ-किश्नर का मैकेनिज्म क्लियर है सबको? Okay. तो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस, ठीक है। तो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन पे आप वुल्फ-किश्नर लगा के इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दिस इज एसिड सेंसिटिव ग्रुप, बेस का इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सो दिस कैन बी अचीव्ड बाय वुल्फ-किश्नर, ठीक है। ओके, नोट कर लिया सबने, आगे बढ़े, बोलो बालको। Yes, sir. ओके, तो वुल्फ-किश्नर के साथ भी एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप बेस सेंसिटिव ग्रुप्स वाले कंपाउंड्स को नहीं रिड्यूस कर सकते, ठीक है। जैसे पिछला क्वेश्चन अगर हम इससे मिलता जुलता मांगे, यहाँ पे ये कंपाउंड है, ठीक है, और इसमें क्या कर लो, यहाँ पे Cl में, इसको अपने को किस में रिड्यूस करना है, लेटस से Cl में, तो इसमें क्या कर सकते हैं, वुल्फ-किश्नर नहीं लगा सकते, क्योंकि जैसे इधर आपने वुल्फ-किश्नर के रिएजेंट डाले KOH NH2NH2, तो KOH क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है, भले ही ऊपर वाला रिड्यूस हो जाए, लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वुल्फ-किश्नर में अगर कोई बेस सेंसिटिव ग्रुप हो तो उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, दिस इज अ बेस सेंसिटिव रीजन, ठीक है। तो इसमें हम लोग दो काम कर सकते हैं, या तो क्लीवेंसन रिडक्शन कर सकते हैं, क्लीवेंसन रिडक्शन से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसा कंपाउंड हो जिसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप और बेस सेंसिटिव ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये कंपाउंड है आपका डबल बॉन्ड, इसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप भी है और बेस सेंसिटिव ग्रुप भी, तो इसमें आप क्लीवेंसन नहीं लगा सकते, इस पे आप वुल्फ-किश्नर लगा सकते हैं, ठीक है। इस पे आप रेड फास्फोरस HI नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होता है, यहाँ पे हम लोग एक रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लेते हैं, उसका नाम है मोजिंगो रिएक्शन, ठीक है। तो रेड फास्फोरस HI, क्लीवेंसन, वुल्फ-किश्नर, देन फोर्थ वन इज मोजिंगो रिएक्शन, ठीक है। मोजिंगो रिएक्शन भी, ये चारों रिएक्शन सेम ही टाइप के हैं, मतलब प्रोडक्ट सेम ही बन रहा है इन दैट सेंस। यहाँ पे हमारा रिएजेंट क्या होता है, R1C डबल बॉन्ड R2, रिएजेंट होता है हमारा इथिलीन थायोल, ठीक है, CH2 OH OH, इसके साथ आप H प्लस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या होता है, सबसे पहले ये O माइनस पे बॉन्ड बनाता है, सॉरी, हाँ ठीक है, ये अच्छा OH OH नहीं है, सॉरी,
थायोल होता है, ठीक है। SH। तो ये सल्फर क्या करता है, इस पे अटैक करता है सबसे पहले, इसका मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले ये R1C डबल बॉन्ड O R2, इस पे क्या होगा, H प्लस का अटैक होता है, देन इट फॉर्म्स R1COH, कार्बोकैटायन बनता है यहाँ पे, ठीक है। अब इस कार्बोकैटायन पे सल्फर अटैक करता है, ठीक है। ये वाला जो सल्फर है हमारा इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, R1C, ठीक है, जो भी है। तो ये सल्फर CH2, एक मिनट, आज 13 तारीख है ना, आज तो नीट का एग्जाम था। एक मिनट रुकिए। तो ठीक है, अगले स्टेप में क्या होता है, वाटर निकलता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से OH, यहाँ से H, and then it forms a cyclic compound, sulfur sulfur R2, ठीक है। फिर इसका आप H2NI के साथ इसको रिडक्शन करा सकते हैं, ठीक है। तो सल्फर सल्फर निकल जाता है, R1C CH2 R2 मिल जाता है आपको, और SH ये वापस मिल जाता है, ठीक है। इसको नोट कर लो जल्दी से, एक मिनट, एक कॉल कर। हेलो, नोट कर लिया सबने? ओके, आगे बढ़े। सो मोजिंगो रिएक्शन इज अ वेरी माइल्ड रिएक्शन। यहाँ पे आप एसिड बेस सेंसिटिव ग्रुप्स भी अगर प्रेजेंट हो तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो लाइक दिस, ठीक है। हेलो, यस सर। ओके, चलो। तो ये आपका टाइप 1 था, जिसमें आपको बेसिकली क्या करना था, C डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट करना था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन कैन बी टाइप 2। इस पे आपको कार्बोनाइल को क्या करना है, जैसे ये कार्बोनाइल को आपको इस पे बदलना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, दिस कैन बी R1 R2 R2। तो इसके ऑलरेडी बहुत सारे तरीके हम लोग देख चुके हैं। कौन कौन सा तरीका देखा है बताओ, तो हेल्प करो मेरा। H2PD, ठीक है, और बताओ।
बोलो अल्को, क्या हो गया आप लोगों को? LiAlH4, ठीक है, ये काम कर सकता है। और बताओ, NaBH4 भी ये काम कर सकता है। और एक रिएक्शन है जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है। दिस इज BH3 in THF। ये भी आपका सेम काम कर सकता है, ठीक है। तो हाइड्रोबोरेशन में हम लोग ऑलरेडी इसका मैकेनिज्म देख चुके हैं। हाँ, इसके साथ एक चीज इम्पोर्टेंट है, जैसे ये है आपका अल्कोहल है, ठीक है, या फिर ईस्टर है, या फिर असाइल क्लोराइड है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ठीक है। तो BH2 का रिडक्शन किसके साथ ज्यादा होगा? बताओ, 1 2 3 में रेट ऑफ रिएक्शन किस में ज्यादा होगा? अच्छा, पहले ये रिकॉल करते हैं, LiAlH4 के साथ किसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1 2 3 में? आई थिंक ये डिस्कस किए थे हम। बोलो। हमने बताया था ना, अलग अलग केस कंसीडर किए थे DPP का जब शीट डिस्कस कर रहे थे। हाँ, तो पूरा सारे फंक्शनल ग्रुप को हमने बताया था, असाइल क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, अमाइड, इन सब में क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन? बोलो भव्या, ओइशी, कोई तो आंसर करो। LiAlH4 में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे जो अटैक होता है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो जिस कार्बन पे डेल्टा प्लस ज्यादा है वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, थर्ड सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर फर्स्ट हो जाएगा, फिर सेकंड। याद आया? हेलो, क्या हो गया, आप लोग का साउंड क्यों नहीं आ रहा है? Am I audible to everyone? भव्या, am I audible? यस सर। ओके, तो BH3 में जो अटैक होता है दैट इज नॉट न्यूक्लियोफिलिक, जैसा हम लोग देखे थे, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ठीक है। सो दिस अटैक इज इलेक्ट्रोफिलिक। तो यहाँ पे ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, तो सेकंड में सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन फर्स्ट, और थर्ड में नो रिएक्शन, ठीक है। जैसे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में अपन लोग देखे थे पहले स्टेप में क्या होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड पे H BH2 का क्या होता है, एडिशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। तो यहाँ पे इधर H लग जाता है, इधर BH2 लग जाता है। इन सिमिलर वे यहाँ पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड O पे भी सेम काम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे BH2, ठीक है। हाँ, होगा H H, ठीक है, O से BH2 लग जाता है। फिर अगले स्टेप में यहाँ से वो इस तरफ से okay. So this can also be used, hydroboration can be used to convert this to this, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। Okay, now this BH3THF can undergo some other types of reactions also on different functional groups, ठीक है। हम लोग बारी बारी से उसको देखते हैं। R C डबल बॉन्ड O O R डैश, ईस्टर ग्रुप पे कैसे रिएक्ट करेगा हमारा BH3THF? तो
ईस्टर ग्रुप पे कैसे रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म RCH2OS प्लस R-OH, ठीक है। सिमिलरली आपके अमाइड ग्रुप पे कैसे रिएक्ट करेगा, RC डबल बॉन्ड O NH2, इस पे सेम रिएजेंट डाले तो RCH2 NH2, ठीक है। सिमिलरली साइनाइड पे कैसे रिएक्ट करेगा, RCH2 NH2, ठीक है। सिमिलरली एसिड एनहाइड्राइड पे कैसे रिएक्ट करेगा, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R डैश, 2 RCH2, बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। ये एक सेम काम आपका H2PD भी कर सकता है, ठीक है। H2PD में हमने ये वाला रिएक्शन लिखा है नहीं था, ठीक है। तो BH3THF ये सब कर सकते हैं, ओके। आगे बढ़े, ठीक है। तो ये हो गया आपका सारा रिडक्शन रिएक्शंस कंप्लीट, ठीक है। फिर स्टीफेंस रिडक्शन हम लोग कल देख चुके थे, साइनाइड में कैसे वो Sn+2+4 में जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, लाइक दैट, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने ही रिडक्शन रिएक्शंस हैं, बाकी हम लोग फिर अगला टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसको नोट कर लिया सबने, यस सर। ओके। Sir, बोलिए। sir, what is the meaning of acid-sensitive and base-sensitive groups? Like, how can Acid sensitive group means that which can attack towards acid, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक अटैक अगर उस पे हो सकता है तो that is called as acid sensitive group, is it clear? Okay, sir. Similarly अगर बेस का उस पे अटैक हो सकता है then that is called as a base sensitive group, sensitive towards acid or sensitive towards base. ओके, चलो ठीक है। हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हम लोग अल्कोहल से ही शुरू करते हैं, उसी का चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अल्कोहल्स ले लेते हैं। ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। फिर 2 डिग्री अल्कोहल है, फिर 3 डिग्री अल्कोहल, सॉरी R डैश, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, बहुत स्टेप्स में इसका ऑक्सीडेशन होता है। पहले हमारा अल्कोहल किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन के एडिशन से नहीं हो रहा है,
H2 के निकलने से हो रहा है, ठीक है। यहाँ से एक H निकल गया, यहाँ से एक H निकल गया, दैट इज व्हाई यू आर गेटिंग दिस। सिमिलरली यहाँ पे भी आप निकाल दो तो H क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH। यहाँ से भी निकाल दो HH क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड R, ठीक है। यहाँ पे निकल नहीं सकता, कुछ ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको? देन फर्दर इसको हम ऑक्सीडाइज करा सकते हैं। एक ऑक्सीजन इसके बीच में डाल दो, इट कैन फॉर्म HCOOH फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये भी हमारा ऑक्सीडाइज कर सकता है क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके पास है, सॉरी RC डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर हम ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते, ठीक है। इसका तो ऑलरेडी गेम ओवर है। फिर आगे देखते हैं, इसको फर्दर हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ पे अभी भी एक H है, डाल दो O उधर, HO C डबल बॉन्ड OH। सो ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है, H2CO3 है विच इज अनस्टेबल, तुरंत ही किसमें टूट जाता है, H2O प्लस CO2 में, ठीक है। ये फर्दर ऑक्सीडाइज अब नहीं हो सकता है क्योंकि अब इसके पास बगल में हाइड्रोजन नहीं बचा इस कार्बन के बगल में, ठीक है। और इसका तो ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो these are some of the oxidation reactions that you are going to see in alcohols। इसको जल्दी से नोट कर लो, हम लोग देखते हैं कौन कौन से एजेंट डालेंगे तो गाड़ी कहाँ तक बढ़ेगा, ठीक है। जस्ट नोट इट डाउन। नोट कर लिया सबने? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो होते हैं उनको हम लोग स्लाइड ओवर ओके। तो जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं उनको हम दो कैटेगरी बांटते हैं। पहले विच आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो गाड़ी को पूरा एंड तक बढ़ाते हैं, मतलब जितना ऑक्सीडाइज कर सकते हैं उतना करते हैं, ठीक है। मतलब अगर 1 डिग्री अल्कोहल अगर आपने डाल दिया
उसके साथ अल्कोहल, ठीक है, उसके साथ अपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया, तो सीधे गाड़ी कहाँ पे रुकेगा आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड पर, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल आपने डाला तो उसके साथ क्या डाला आपने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गाड़ी कहाँ पे रुकेगा, कीटोन पे, ठीक है। 3 डिग्री अल्कोहल तो वैसे भी ऑक्सीडाइज नहीं करता, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना आपने को, कुछ ऑक्सीडाइज नहीं होगा, ठीक है। दूसरी कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस होते हैं हमारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारी क्या क्या करती है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में अगर आपने 1 डिग्री अल्कोहल डाला, ठीक है, तो उसका गाड़ी कहाँ पे रुक जाता है, बस एल्डिहाइड पे रुक जाता है, ठीक है। फर्दर ये ऑक्सीडाइज नहीं करता, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाता, ठीक है? फिर अगर इसमें आपने 2 डिग्री अल्कोहल डाल दिया तो सेम रिएक्शन होगा। 3 डिग्री तो वैसे भी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होता, उसके बारे में बात नहीं करनी, ठीक है। So this is the difference between strong oxidizing agent and mild oxidizing agents, ठीक है। एग्जांपल्स मेनली आपको याद रखते हैं इसमें, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन होते हैं और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन कौन होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के एग्जांपल है आपके KMnO4, ठीक है। देन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के आपके एग्जांपल है H2CrO4, ठीक है, क्रोमियम जिसमें +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं CrO3H+। So these are some of the strong oxidizing agents. Mild oxidizing agents भी बहुत हैं। सबसे पहला होता है क्या, PCC, ठीक है। PCC बोले तो pyridinium chlorochromate, pyridinium chlorochromate, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, pyridine ले लो आप, pyridine ये होता है, इस पे आपने H+ डाल दिया, so this becomes pyridinium ion, ठीक है। और इसका आप क्लोरोक्रोमेट लेना है, क्लोरोक्रोमेट बोले तो CrO3Cl-, ठीक है। So this is the cation, this is the anion, pyridinium chlorochromate, this is a mild oxidizing agent, ठीक है। Then another mild oxidizing agent is your Swern oxidation, Swern oxidation। यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज योर this thing and the solvent used is DMSO, ये आपका PCC के सब्स्टिट्यूट में काम करता है, ठीक है। Another way to do this is by passing it through copper tube, ठीक है। कॉपर ट्यूब से आप इसको पास करते हैं तो ये हो जाता है, ठीक है। कॉपर ट्यूब मतलब बोले तो अगर आपने CHOH इधर कुछ भी ग्रुप है, उसको आपने किससे किया, कॉपर ट्यूब से पास किया हीट करके, तो डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। So this is another example of mild oxidizing agent. Is it clear? आगे बढ़े, ठीक है। इसके कुछ और एग्जांपल होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4, ठीक है, NaOCl, ठीक है। NaOCl भी आपका सेम काम करता है, NaOCl and H+, so also a mild oxidizing agent. Then
HNO3. HNO3 is also mild oxidizing agent. ये सारे आपके mild oxidizing agents के एग्जांपल नोट कर लिया सबने? इसके अलावा हम लोगों ने और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देख लिए थे, जैसे HPO एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एल्कीन से वो कन्वर्ट होता है हमारे अल्कोहल में। सिमिलरली OMDM हम लोगों ने देखा था, दैट इज आल्सो एल्कीन से ऑक्सीडाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो लाइक दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में अपने पास ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ओके, सो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। हम लोग फिनॉल्स वगैरह डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, और probably this chapter will get finished. Okay, किसी को कुछ डाउट पूछना है? सर वाइवा कब होगा? वाइवा हम सोच रहे हैं रखना है कि नहीं रखना है। ट्यूसडे को रख सकते हैं, ट्यूसडे या वेडनेसडे, दोनों में से कोई एक दिन बताओ। सर ट्यूसडे को रख दीजिए। ट्यूसडे, ओके चलो ठीक है, ट्यूसडे को। सर हाँ बोलो। सर आप टेस्ट इन स्कूल? ट्यूसडे को टेस्ट है आपका? सर हमारा भी कल से हाफ ईयरली स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ठीक है, तो फिर अगले वीक रखते हैं। ठीक है, तो आपका हाफ ईयरली सिलेबस क्या है, उसका क्या क्या आ रहा है उसमें? सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, अल्कोहल, फिनॉल, अल्काइल हैलाइड, सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी है। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री नहीं हुआ है, बाकी सब तो हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग अपना बेस्ट दो। ठीक है, हाफ ईयरली का मार्क्स उतना मैटर नहीं करता है। बस स्कूल में आपका इमेज थोड़ा खराब हो जाएगा अगर कम नंबर आए। चलेगा, ठीक है, किसी को कुछ डाउट पूछना है बेस्ड ऑन व्हाट वी डिस्कस्ड टिल नाउ? नहीं? ओके चलो, तो फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास।